Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the 8th video lecture of the chapter Nutrition in Animal. In last video, we have discussed about digestion, completion of digestion in small intestine, absorption of nutrition. Then we have seen egestion. So in small intestine, I have told you digestion completes due to intestinal juice, and after that, due to presence of finger-like projections called villi, the digested nutrients are absorbed and it is transported to different part of the body with the help of blood, because near the surface of villi blood capillaries are there, and these blood capillaries transport the blood along with the absorbed nutrient to different part of the body where it is assimilated. Assimilated means utilized. For example, amino acid that is absorbed from villi is used to make protein in our body cells according to requirement, and the carbohydrate absorbed by the villi is transported to different part of the cell where the internal or the cellular respiration take place, where carbohydrate or the glucose react with oxygen to form CO2 and energy. This gives energy to the cells. So this is called assimilation. After that, we have seen egestion. Egestion means throwing out of the undigested food from the body is called egestion. And in large intestine, I have told you no digestion take place, only absorption of water and some salt take place, and this partially means this semi-solid undigested food particle is called fecal waste, which is stored in the rectum, and with a small opening called anus, this fecal waste is thrown out of the body, and the process is called egestion. ठीक है? So माउथ से लेके स्मॉल एनस तक सब कंप्लीट हो गया था. इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. चलिए आज हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. मींस ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए. ग्रास ईटिंग एनिमल्स, दे आर herbivores. If they are herbivores, they eat grass, mainly grass, not only grass but mainly grass. One more term is there, that is cellulose. Cellulose is a complex carbohydrate. This complex carbohydrate, this cellulose, is present in the cell wall of plant cell. अगर आपको याद हो, चैप्टर 1 में हम बताए थे आपको कि एनिमल सेल जो होता है उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म होता है और फिर न्यूक्लियस होता है. बट इन केस ऑफ प्लांट के केस में इसका जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है इसको कहते हैं सेल वॉल. ये एक रिजिड मींस जिसका शेप फिक्स है, रिजिड स्ट्रक्चर है. इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर होता है ये न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस हो गया और ये जो हो गया ये साइटोप्लाज्म हो गया, जेली लाइक सब्सटेंस. देखिए प्लांट सेल और एनिमल मींस प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, मींस क्या सिमिलरिटी है. इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन. डिफरेंस क्या है?
इसका आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, इसका आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक स्ट्रक्चर है जिसको सेल वॉल कहते हैं। एंड दिस सेल वॉल, ये जो सेल वॉल होते हैं ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, ठीक है। ये नॉर्मली ये जो सेल्यूलोज है ये पाया जाता है फाइबर्स में, रफेज में। रफेज जो हम लोग खाते हैं उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, इसीलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। व्हाई वी ऐड रफेज इन आवर फूड? टू इंक्रीज द डाइजेशन कैपेसिटी। हमारा बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के चक्कर में हम जो भोजन खाए हैं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाता है। सेल्यूलोज को तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, मगर मेरे बॉडी में जो बाकी जो भोजन खाए हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर जाता है। ये सेल्यूलोज जो फाइबर्स जो हम लोग खाते हैं रफेज, ये ऑल्सो मदद करता है इन मिक्सिंग द फूड विद द वाटर एंड सलाइवा। ये सब मिक्सिंग में भी ये मदद करता है। खैर ये सब बात छोड़ो, चलिए। तो सेल्यूलोज क्या हो गया? इट इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है सेल्यूलेज, NOSC। सेल्यूलोज हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलेज LASE एक प्रकार का एंजाइम है that help in digestion of cellulose, and it is produced by bacteria, certain bacteria, ठीक है। ये हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, ये सेल्यूलेज मींस ये सेल्यूलेज एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी में ये सेल्यूलेज प्रेजेंट होता है ड्यू टू बैक्टीरिया। चलिए समझ लेते हैं। स्टोमक, ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, स्पेशली काऊ, बफेलो, हॉर्स, ये सब जो होते हैं, इसका जो स्टोमक होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स स्टोमक। हम लोग के जैसा सिंपल स्टोमक नहीं होता है, इन लोग का कॉम्प्लेक्स स्टोमक होता है। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे। अच्छा एक और बात, हर्बीवोर्स को तो हम लोग ना क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेट करके रखे हैं, बट इन नेचर, प्रकृति में इनको हमेशा डर लगा रहता है कि कार्निवोर्स इनका शिकार कर लेंगे। इसलिए ये कभी भी जब खाना खाते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा खा के और आराम से कोई सेफ जगह चले जाए और वहां पर जाकर सेफली कहीं सेफ जगह पे बैठ के उसके बाद उस खाना को एंजॉय करे या चबाए। सो इसीलिए कार्निवोर्स के डर से ये लोग इस प्रकार का बिहेवियर और इस प्रकार का इन लोग का डाइजेशन है। सो माउथ के मदद से ये इंजेक्शन करते हैं। जब ये इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन, when they ingest the food they do not chew the food। वो जो खाना वो जो घास वो निगलते हैं उसको वो चबाते नहीं हैं। मीन्स ग्रास जस्ट मिक्स विथ सलाइवा एंड गेट स्वेलोड। वो क्या करेंगे, इस सलाइवा में इसको मिक्स करके एक जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, एक दिन में ये 100 से लेके 200 लीटर तक सलाइवा बना सकते हैं। 1 से 200 लीटर तक सलाइवा ये बना सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो ग्रास है इसको उस सलाइवा में मिक्स करके उसको स्वेलो कर लेंगे। So with the help of this esophagus, that food enter directly into this first chamber. This is the first chamber. This is the first chamber. This is called rumen. This grass enter into
from esophagus directly enter into the first chamber. This is the largest chamber of the stomach. ये लार्जेस्ट चेंबर है, सबसे बड़ा चेंबर है ये, इसको पाउच भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, मींस पार्शियली डाइजेस्ट। सो इसके इस स्टोमक में मींस ल्यूमेन में बैक्टीरिया होते हैं, अराउंड 200 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो सब आपको नहीं जानना है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि इसके स्टोमक में बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करेंगे, जो ग्रास जो खाए हैं, जो स्वेलो किए हैं, उसको वो डाइजेस्ट करेंगे, पार्शियली डाइजेस्ट। एंड दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इट goes into the second chamber. This is the second chamber, that is called reticulum. First chamber is lumen, second chamber is reticulum. The content of lumen and reticulum mixed randomly, मतलब वो अक्सर मिलते रहते हैं। So the food is digested here, partially digested food transferred to the reticulum, that is the second chamber. From second chamber, this partially digested food is called curd. इसका स्पेशल नाम है, इसको कहेंगे curd. This partially digested food is called curd, and this curd is returned back to the mouth, means from second chamber, that is reticulum, this partially digested food that is called curd, it returned to the mouth, and the process is called rumination. The process is called rumination. This curd returned back to the mouth when the animal is resting, means first they will swallow, it will stored in the this rumen. It is big pouch like structure. It is, you can say it is this function, its function is to store. It will store and some amount of digestion also take place. After that it enter into the reticulum. या यहां से छोटे छोटे टुकड़े में, एक बार में पूरा घास मुंह में नहीं आ जाता है, वो क्या करेंगे, जितना भी घास चबाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके, मीन्स छोटा छोटा टुकड़ा होकर वो आ जाएगा रेटिकुलम में, और ये छोटा छोटा टुकड़ा जिसको कट कह रहे हैं, दैट गोज बैक टू द माउथ, एंड व्हेनेवर दे आर रेस्टिंग दे विल स्टार्ट च्यूइंग इट, ये इसको आराम से चबाएंगे, they will chew it, and after chewing now the food directly enter. अभी क्या बोले, after chewing food bypass, ये जो फूड है, chewed food है, it bypass किसको, फर्स्ट एंड सेकेंड चेंबर, पहले और दूसरे चेंबर को ये बाईपास करता हुआ डायरेक्ट ये इंटर कर जाएगा दिस थर्ड चेंबर, इस थर्ड चेंबर में, जिसको बोलते हैं ओमेशम। सो फर्स्ट चेंबर ल्यूमेन, सेकेंड चेंबर रेटिकुलम, थर्ड चेंबर ओमेशम, एंड इन ओमेशम एब्जॉर्प्शन of water take place। अभी क्या होगा कि जो भी चबा के वो उसको वापस से अंदर लाएंगे, वो कहां आएगा, थर्ड चेंबर में, जिसको बोलेंगे ओमेशम, एंड फ्रॉम ओमेशम फूड इंटर इनटू द फोर्थ चेंबर, दैट इज कॉल्ड एबोमेशम। द फोर्थ चेंबर इज एबोमेशम। फर्स्ट ल्यूमेन, सेकेंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेशम, फोर्थ अब एबोमेशम। दिस एबोमेशम इज ट्रू स्टोमक। अभी तक स्टोमक के नाम पे हम लोग सिर्फ मजाक ही कर रहे थे, मतलब यूजलेस,
मतलब मजाक नहीं, आई एम सेइंग ये भी स्टोमक है, इट इज द स्टोमक हैव 4 पार्ट्स, ल्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। आप लोग और हम लोग जानते हैं इस बात को, स्टोमक का क्या काम है, स्टोमक के बारे में क्या जानते हैं। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा, गैस्ट्रिक जूस में HCl होगा, पेप्सिन होगा और म्यूकस होगा, यहाँ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा, ये सब जहां होगा उसी एरिया को स्टोमक कहते हैं ना। तो एबोमेसम में वो सब होता है जो नॉर्मल स्टोमक में होना चाहिए। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाएगा जहां पे डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस, यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो गया, एंड आफ्टर दैट दिस डाइजेस्टेड फूड इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इफ यू कैन सी दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड this in small intestine digestion completes and absorption of the nutrient take place. After absorption this enter into the large intestine, and through large intestine it comes out through anus, ठीक है। So these are the 4 chambers of the stomach of the grass eating animals। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं हम, ये जो एनिमल्स है जो रूमिनेशन कहते हैं, रूमिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पार्शियली chewed means partially digested curd back to the mouth for chewing is called rumination। and जो एनिमल इसको ruminate करते हैं, मतलब जो चबाते हैं, mastication करते हैं, चबाना कहते हैं, that is called ruminant। the animal that perform rumination is called ruminant। okay, फिर से बोल दे रहे हैं, जब माउथ से ये खाएंगे तो वो ग्रास सलाइवा से मिक्स होते हुए पहला चैम्बर में जाएगा ल्यूमेन में, ल्यूमेन में से छोटा छोटा टुकड़ा होकर ये आएगा रेटिकुलम में। ल्यूमेन और रेटिकुलम दोनों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और दोनों जगह पे डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ द swallowed food take place। After partial digestion this is called curd। this curd transferred back to the mouth where it is chewed। after chewing it properly, when the re-chewed food is re-swallowed, फिर से जब उसको निगला जाता है, then it directly goes into the 3rd chamber that is called omasum, and in omasum absorption of water take place, and after omasum food enter into the last chamber that is called abomasum। in abomasum digestion take place because it is the true stomach where gastric gland is present and gastric juices are secreted, and after that the digestion of the food take place in the abomasum। food enter into the small intestine, via small intestine it goes into the large intestine, and the undigested food particle is thrown out and the digested food particle is absorbed by the long small intestine। ठीक है, चलिए कुछ और बातें हैं, एक और छोटा सा बात बताते हैं। हॉर्स और रैबिट एक एनिमल्स, इन दोनों में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है between the small intestine and large intestine। small intestine और large intestine के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैकम। ये जो कैकम है इसमें सेल्यूलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये जो ग्रास ईटिंग मींस रैबिट्स और हॉर्सेस जो होते हैं उनका जो कैकम जो होता है उसमें सेल्यूलेज प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो हेल्प इन डाइजेशन। इन लोग में भी होते हैं मगर इन लोग में इतना जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे इन लोग के पास सफिशिएंट बैक्टीरिया है, बट इन हॉर्स एंड रैबिट दे हैव कैकम। चलिए ठीक है, डायग्राम मन हो तो बना लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये पूरा फेस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही बना लोगे, 4 चेंबर, 1st, 2nd, 3rd, 4th। हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को ऐसे भी वीडियो के स्टार्टिंग में साफ से होगा तो वहां पे आप लोग देख लीजिएगा, लिख देते हैं फिर उसको आप लिख लीजिएगा। ओके,
nutrition in grass eating animals. Grass eaten is rich in a specific carbohydrate called cellulose. Stomach of such animals have 4 chambers, so called compound stomach. To avoid being caught by carnivores, grass eating animals quickly swallow the fodder. Then they go to safe place and bring food back to mouth and chew it. ठीक है? The process of chewing of food is called rumination, and such animals are called ruminants. Ruminants किसको कहेंगे? Animals that bring back the food, partially digested food back to the mouth and chew it is called ruminants, and the process is called rumination. So the 4 chambers of the stomach are: first the rumen, first chamber; reticulum, second chamber; omasum, third chamber; and abomasum, फोर्थ चेंबर. चलिए, तो इन सब के बारे में एक एक करके लिख देते हैं. ओके, सो rumen, the first chamber. The fodder mixed with saliva is swallowed, which get stored in rumen. It is the largest chamber, सबसे बड़ा chamber है ये. Digestion of cellulose take place in rumen. Reticulum. Now food enter into second chamber called reticulum. In first 2 chambers, food is partially digested and converted into soft pulp called cud. Cud क्या है? Partially digested food present in the rumen and reticulum is called cud. Now pulpy food. Pulpy food मतलब क्या? The cud. I am talking about the cud. The pulpy food is brought back to mouth when animal is resting for chewing the cud. Cud को चबाने के लिए. After chewing, food is pushed into the third chamber called omasum. Omasum, it is the smallest chamber. Here absorption of water takes place. ठीक है? Abomasum. This is the true stomach. Digestive juices are secreted here for digestion. Digestion यहाँ पे complete हो रहा है. From fourth chamber, food enters into the small intestine. Absorption of nutrient take place in small intestine. चलिए, एक बात बता ही चुके हैं आपको कि why the animals have the habit of rumination. Because they have to protect themselves from carnivores. अपने आप को बचाने के लिए वो जब बाहर निकलते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रास को स्वैलो कर लिए. आदत हो गया है उनका. आप कहिएगा सर घर में कौन सा जानवर पकड़ लेगा उसको, कौन सा कार्निवोर है? नहीं, ये उनका हैबिट हो गया है. इट्स हैबिट, इट्स एडेप्टेशन. दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ देयर बॉडी. ओके, चलिए ठीक है. बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर देखते हैं.